hope it is visible to all now. Okay. So we have the row number, we have the name, and we have the marks. Now what we want is whenever I select any row number over here, whatever row number I select from the table, it should reflect me the name of the student here. It should reflect me the name of the student here and also the marks. Okay. So we want to fill these green columns, okay, with the name and the marks of the student. That is we want to do by selecting just the row number. So how can we do it? We will write a formula over here is equal to index. Index returns a value or a reference of the cell at the intersection of a particular row and column. So what it will do is it will give us the particular value from that cell where the row and columns are matching. It will it will rip it will return the value from the cell from the table in the table. Okay, whatever cell we are selecting, it will return. So first we have to select the array. So in the array I will select the entire table. In the array I have selected the entire table. Okay, comma. Now we need to put the row number and column number. We need to put the row number and column number. So tell me, where should I select the row number? From where will I select the row number? J3, correct. J3. J3. So I will type J3. Okay, comma. Here, now we need to select the student name. So which column number has the student name? What column has the student name in this table? Which column number has the student name? Column number 2. So we will select column number 2. We will write 2 here. Okay, and we will close the bracket. So what do you see now? When I've selected row number 1, I'm getting Niti as the answer. Okay, when I've selected row number 1 because Niti has is in row number 1. Now when I select row number 5, 6, I'm getting Aisha. If I select row number 8, I'm getting Chitranshi. If I select 9, I'm getting Arushi. So it is a dynamic way of getting what the value from a particular row and column, intersection of row and column in a table. Okay. Now, so far what we have done is we have taken a reference from for the row from this table. We have mentioned the column number starting as 2. Okay. Now, the same formula I will copy and I will paste here. Same formula I've copied and I've pasted here. So what do you get now? See, we are getting the entire list of all the names. We are getting the list of all the names because when we copied this formula to the next cell, we had not fixed J3. We had not fixed J3. So let me now fix J3. So F4 I've done here. So when I copied it, this F J3 became K3. J3 became K3. And there is nothing in K3. There is nothing in K3. Now let me select some number in K3. I have selected 1. So now it is showing only Niti. If I select 2, it is showing Alok. If I select 3, it is showing Chiranjeev. Okay. So now do you get what we get the result as from index and match? Okay. So whenever you change any row reference, it is changing the student name. And now I want the marks. So instead of writing 2, I will mention J3. Okay, J3. And here I will write down I3. Okay.
So I'm getting 67 as the answer. 67. Now, what, can you tell me what is 67? By looking at the table, can you tell me what is 67? Marks. Marks of whom? Chitranshi. Chitranshi. It is the marks of Chitranshi. It is the marks of Chitranshi. Okay. So if we change and if I make it 4, if I select 4, whose marks are we getting? Whose names we are getting? Whose name is there now? Gurjot. Gurjot. And is the marks also of Gurjot? Yes, sir. Yes. Okay. So that is how index work. Okay. But to use index, we should have row number and column number. We should have row number and column number. Okay. Now, suppose, for example, I don't want to use these two columns. I'm deleting these two columns. Now, what has happened? The student has also gone, marks is also gone. Okay. I'm creating a drop down over here. What is the shortcut key to create a drop down? Alt Alt A V. AVV. Very good. Alt AVV. Very good. Now, what do we select from here? List. List. And what do we write here? Source will be what? Students. Student's name. Student's List. name. So F3 to F11 is the source, and I'll click on OK. So now I've got the list of the student. So whatever name I should select now, it should give me the respective marks of this particular student. It should give me the marks of this particular student. Now, can I use index over here? My question is this: can I use index? So in the index, I will give the array. So array will be the table. So I will select the table 1. This is my array, comma. Now row number. Now do we have the row number? I3. Huh? I3. Wait. Just a minute. Let me just increase this column. Yeah. So index array is my table, comma. Yes. What you are seeing in the row number? I3. I3. I3 has the student name. There is no number. But Row number 1. I3 So को what- सेलेक्ट करेंगे एंड हम कॉलम में मार्क्स को दिखाएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली इफ वी चेंज दी स्टूडेंट्स नेम तो वो मार्क्स भी ऑटोमेटिकली वहाँ चेंज कर देगा, बिकॉज हमारा रेफरेंस मार्क्स रहेगा. एक मिनट श्रेष्ठ, आप क्या कह रहे हैं? हम क्या करेंगे? इंडेक्स में हमने टेबल सेलेक्ट कर लिया, एरे सेलेक्ट कर लिया, अब वो पूछ रहा है रो नंबर. तो रो हाँ. नंबर में मैं क्या लिखूं? I3 लिखूं. हाँ. ठीक है. और फिर कॉलम नंबर में क्या लिखूं? 3. मार्क्स वाला कॉलम. हाँ तो मार्क्स वाला कौन सा कॉलम है? 3 नंबर दे दूंगा उसको. जी. ठीक है. क्लोज करें. यस सर. क्या आ गया? सो टेबल में Error. आप रेफरेंस दे दीजिए मार्क्स का इन ब्रैकेट. अच्छा, I think- 3 नहीं लिखूं? 3 की जगह पे रेफरेंस दो मार्क्स का. जी. हाँ. जी सर. अच्छा, तो ये दे दूं मैं, ये. दिस इज व्हाट यू आर सेइंग. नो नो नो. आफ्टर इंडेक्स टेबल 1, देन आफ्टर टेबल 1 उसके बाद मतलब मार्क्स का प्रेफरेंस दीजिए, यहाँ पे मत दीजिए जो सबसे फर्स्ट आपने मेंशन किया है. इंडेक्स यहाँ. के बाद मैंने टेबल 1 लिखा है, कॉमा लगाया. अब क्या करूं मैं, ये बताइए. नहीं टेबल 1 के बाद हाँ, टेबल 1 के बाद मार्क्स. मार्क्स. जी. तो ये सिलेक्ट कर लूं पूरा टेबल? सर आप दो बार वो टेबल को कर दे रहे हैं, वो कॉमा हटा के आप मार्क्स का वो दे सकते हैं ब्रैकेट में. ब्रैकेट लगाऊं? जी. ये वाला नहीं रुकिए कर्ली ब्रैकेट, मैं ये चैट में सब दे रही हूँ. आप चैट में लिखिए. जी सर. index table marks. Okay, instead of table selecting the entire table, I should select marks. She's saying. Okay, ऐसा आप कह रहे हैं. जी. This is what you mean. यस सर. Then कॉमा I3. हाँ, I3 I3 comma then 1. nothing.
1. 1. Okay, okay. Value. Now let me tell you what is the problem. क्या गड़बड़ हुआ है मैं बताता हूँ आपको. आपने क्या किया है, आपने यहाँ पे I3 में क्या है, स्टूडेंट का नाम है. पहली बात तो आपने सिर्फ ये कॉलम सिलेक्ट करा है. इस कॉलम का इस स्टूडेंट के नेम से क्या रिलेशन है? कोई रिलेशन है No, sir. इन नेम्स का और इन द स्टूडेंट का? इज देयर एनी रिलेशन? No. यस और नो? No, sir. नो. तो वैसे ही गड़बड़ हो गया था, सिर्फ मार्क्स कॉलम लेना है. ठीक है, अब देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3. ठीक है, आई एम मेंशनिंग 3 ओवर हियर. अच्छा, it will not allow this value 3 because there is this thing. Let me remove this validation and now let me put 3 over here. What we are getting as the answer now? 92. Now let me write down 8. What shall we get the answer as? What we are getting the answer as? 67. If I write 6, what should we get the answer as? 6 में क्या आएगा बताइए? 86. 86. 6. ये क्यों हो गया, क्यों चल रहा है अब? क्योंकि यहाँ पे क्या है, नंबर है. तो ये क्या कर रहा है, इस टेबल, इस कॉलम में पोजीशन ढूंढ रहा है. व्हाट इज द 6th पोजीशन? सो काउंटिंग 1 2 3 4 5 6. 6 पे 86 है, 86 बता दो. अगर मैं यहाँ पे नंबर 1 लिख देता हूं तो क्या आंसर आएगा? 95. Yes, sir. सो अभी इंडेक्स का मतलब पता चला सबको? डू यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंडेक्स? Yes. व्हाट इज द यूज ऑफ द फॉर्मूला इंडेक्स? Are you getting it? Yes. Niti says yes. What about Arushi? Santosh ma'am, what about you? Are you getting? See, Sir, we formula is okay, but earlier we were showing this name was appearing, and accordingly we were looking for the marks. But now we are again going for that number. yeah. So See, I'm explaining you. Yeah. I'm coming to it. I'm coming to it. Okay. See, because she had introduced this table marks, so I told her that this is to be done. Now I'm coming back to what I was explaining. Okay. Now try to understand. So what we have done is we have selected the entire table in the index, comma. Now the problem is whenever we have to extract anything from the table, we have to give the reference of the row number and the column number. So suppose I say, okay, I want the marks of Mayur. I want the marks of Mayur. So which row number has Mayur? Tell me. this is row number 5. It is row number 5. Okay. And which column of the table contains the marks? Row column number 3, sir. Column number 3. So once I mention index table 1, search in table 1, go to table number, column number, row number 5, and go to column number 3 and get me the value which you derive by going there. Okay. Yeah. So what do I get now? Now there What is do the I get? marks We have got is the there. marks of Mayur. We have got the marks of Mayur, right? Right, sir. But this is not the way I want. What I want is that I should not tell Excel कि go to 5th row and go to 3rd column. The Excel should automatically look for which row has Mayur. Are you getting it? Right. हम एक लेवल आगे जा रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे आपने मैन्युअली एंटर करा है 5 और 3. अभी मैं आरुषि के मार्क्स पूछूं तो आपको मैन्युअली 9 लिखना पड़ेगा, तब जाके इसके मार्क्स आएंगे आरुषि के. लेकिन हम मैन्युअली कुछ भी नहीं करना चाहते हैं. इफ आई राइट 1, आई विल गेट द मार्क्स ऑफ नीति, बट आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग मैन्युअली. करेक्ट? Right, sir. So what we have to do is we have to replace that part which is manual. What is manual? Row number. अभी रो नंबर में मुझे क्या चाहिए, वो रो आ जाए जहां पे मयूर लिखा है. करेक्ट? तो काम हो जाएगा ना? Right. जी. Yes. So what we need to do is we need to write another formula of match. We need to introduce match function now. Okay. ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इजी है.
कुछ भी दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है। मैच फंक्शन आप ओपन कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम मैच करना चाहते हैं कि मयूर जो है, I3 में जो मयूर है वो इस पूरी टेबल में कौन से रो में है। आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द रिलेटिव सेल नंबर और पोजीशन ऑफ मयूर। सो लुकअप वैल्यू क्या होगी? मयूर होगी, जहां पे लिखा है नाम। एरे क्या होगा? टेल मी एरे। टेबल। टेबल। Table one. ठीक है। मैच टाइप विल बी व्हाट? जीरो, बिकॉज यू वांट एन एग्जैक्ट मैच। गेटिंग इट? Right, sir. सो अभी इंडेक्स का फॉर्मूला चल रहा था, इंडेक्स में मैंने टेबल 1 लगाया, मैच मैंने लगाया रो के लिए, कॉमा। इसी तरीके से मुझे मार्क्स ढूंढने हैं, इसी तरीके से मुझे क्या ढूंढना है? मार्क्स। Hmm. अभी मार्क्स भी है ना, मुझे पता नहीं कि कौन से कॉलम में मार्क्स लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अभी तो मालूम है कि थर्ड कॉलम में है, लेकिन Hmm. मान लीजिए कि हमें नहीं पता, टेबल बहुत बढ़िया है, कौन से कॉलम में मार्क्स है नहीं पता, तो उसके लिए फिर से मैच लगा सकते हैं, पता है आप? फिर से मैच लगाएंगे, और इस बार क्या ढूंढना है? मार्क्स। ठीक है, इस बार फिर से मार्क्स ढूंढना है। अब कहाँ ढूंढना है? एरे क्या होगा बताइए? कैन आई राइट टेबल ईयर? कैन आई राइट Yes. टेबल ईयर अगेन? Yes, sir. यस। सोच समझ के बोलिए यस। इसमें कहीं पे भी मार्क्स दिख रहा है जो टेबल सेलेक्ट हुई है इसके अंदर मार्क्स वर्ड लिखा हुआ है क्या? नॉट द रियल मार्क्स बट मार्क्स वर्ड आई एम सेइंग। है या नहीं है टेबल के अंदर मार्क्स? No, sir. नो। किधर है No. तो फिर? In column number 3. इन कॉलम नंबर, इन रो नंबर 2। सो वी विल सेलेक्ट Okay. E2 से लेके G2। इन हेडिंग्स में से ढूंढना है ना कि कौन से कॉलम की हेडिंग मार्क्स है। आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. ओके। सो नाउ इट इज अ वेरी एडवांस लेवल दैट आई एम टीचिंग, ठीक है? और आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, थोड़ा सा ओपन माइंड के साथ बैठेंगे, आपको सब समझ में आएगा, ठीक है? नहीं आता है तो मैं 10 बार समझाऊंगा, लेकिन ये समझना है, इसमें गिव अप मत करना कि हमें नहीं समझना। बहुत टिपिकल है, बहुत ईजी है, और बहुत इंटरेस्टिंग और मजा आएगा आप जब सीख लोगे तो। ठीक है। सो Okay. इंडेक्स में टेबल 1 किया हमने, वी हैव रिटन टेबल 1, वी हैव गिवन द रेफरेंस ऑफ दिस टेबल। फ्रॉम दिस टेबल आई वांट टू फाइंड आउट वेयर इज मयूर। ठीक है, मयूर कहाँ है? तो उसके लिए हमने मैच लगाया, मयूर को सेलेक्ट करा, फिर वापस से टेबल सेलेक्ट करी, और फिर एग्जैक्ट मैच लगा दिया। फिर मयूर के बाद मुझे ढूंढना था कि मार्क्स कहाँ है, कौन सी हेडिंग कॉलम की मार्क्स है। तो मार्क्स को सिलेक्ट करा, और ये रेंज को सिलेक्ट कर दिया जिसमें भी हेडिंग लिखा हुआ है, और 0 लगा दिया। अब ये देखिए, मैच एक बार लिखा है, 2 बार लिखा है, तो एक ब्रैकेट मैच का ओपन हुआ रेड, एक ब्रैकेट मैच का क्लोज हुआ, दूसरे मैच का दूसरा रेड ब्रैकेट ओपन हुआ, और ये क्लोज हुआ। इंडेक्स का ओपन किया था हमने ब्लैक ब्रैकेट, इंडेक्स का ब्रैकेट क्लोज हो गया क्या? नहीं, No, open है sir. sir. तो क्लोज करते हैं, क्लोज करा। अब ये हमारा पूरा फॉर्मूला, फॉर्मूला बार पे देखिए, ये पूरा फॉर्मूला कंप्लीट है। वी आर रेडी टू गो। नाउ लेट अस प्रेस एंटर, and what do we get is an error. Let us see why we are getting an error. टेबल 1 हमने सेलेक्ट कर रखा है, मैच करा I3 में मयूर था, टेबल 1। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि ये पूरे टेबल में शायद मयूर को ना ढूंढ पाए, हमें उसका एग्जैक्ट कॉलम देना पड़ेगा। तो आई विल राइट डाउन नेम ओवर हियर, क्योंकि टेबल के नेम वाले कॉलम में मयूर है ना, तो हम नेम वाला कॉलम इसको बताते हैं कि भाई इस कॉलम में से मयूर ढूंढना है आपको। ठीक है, रो नंबर नहीं बताया, कॉलम बता दिया है। फिर हमें क्या मैच करवाना था, कौन से कॉलम में? तो मैंने मैच लगाया फिर से J2 में क्या है हमारा? मार्क्स है, और इसको हमने मैच कराया E2 से लेके G2 तक, E2 से लेके G2 तक, ये तो ठीक है बिल्कुल। अब देखते हैं आंसर आ रहा है क्या। यस, सो व्हाट आई एम गेटिंग इज 88। एम आई गेटिंग 88? Yes sir. मयूर का मार्क्स आ गया। हाँ अब मैं जी. यहाँ पे टाइप करता हूँ, अब मैं टाइप करता हूँ यहाँ पर गुरजोत। गुरजोत के भी 88 है, इसलिए चेंज हुआ, मैं नीति टाइप कर देता हूँ। क्या आ गया आंसर? 95. नाउ लेट मी टाइप शौर्या। व्हाट डू आई गेट एज आंसर? 74. No.
अब लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड वन मोर टाइम कि ये क्या हुआ है, ठीक है। और उसके बाद मैं एक और आपको केस स्टडी पे लेके जाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको ये। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ करेंगे, सब समझ में आएगा। तो हम इंडेक्स लगा रहे हैं। इंडेक्स में हमने करा टेबल सेलेक्ट कर ली, क्योंकि इस टेबल के इंडेक्स में से मुझे चीजें निकालनी है। फिर देखिए, फॉर्मूला, हर एक फॉर्मूले का आपको सिंटेक्स पता होना चाहिए, है ना। तो फर्स्ट आई एम राइटिंग द सिंटेक्स। इंडेक्स एरे, ठीक है, आई एम जस्ट टाइपिंग हियर व्हाट एवर इज रिटन, एरे कॉमा, ये बोलता है रो नंबर कॉमा कॉलम नंबर। इस फॉर्मूले को समझिए पहले आप, ठीक है, इस फॉर्मूले को समझिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, उस तभी तभी आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। लेट अस फोकस ऑन दिस फॉर्मूला फर्स्ट, ठीक है। चलिए, सो इंडेक्स क्या बोलते हैं, एरे। एरे का मतलब होता है टेबल। एरे मींस टेबल, इन सिंपलर वर्ड्स एरे इज इक्वल्स टू टेबल। देन वी वांट इज रो नंबर एंड कॉलम नंबर, बस ये तीन चीजें तो पूछ रहा है। तो हमने क्या करा, इंडेक्स के अंदर एरे लगाया, इंडेक्स के अंदर लगाया एरे, ठीक है। यहाँ पर इंडेक्स के अंदर एरे दिया, एरे टेबल था। फिर रो नंबर के लिए हमने एक फंक्शन लिखा मैच। अब मैं आपको अलग से मैच लिख के बताता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे लिख के बताता हूँ, मैच इज इक्वल टू मैच लुकअप वैल्यू, मुझे सॉरी ढूंढना है, कॉमा कहाँ ढूंढना है, इस टेबल के नेम वाले कॉलम में, इस टेबल के नेम वाले कॉलम में मुझे सौर्य का नाम ढूंढना है, और एग्जैक्ट मैच चाहिए, इसलिए जीरो लगा रहा हूँ, ठीक है। एंटर कर देते हैं, क्या आया, व्हाट वैल्यू डिड आई गॉट, हैव आई गॉट, 7. व्हाट वैल्यू हैव आई गॉट इन दिस ब्लू सेल, 7। नाउ व्हाट डज 7. 7 मींस, दैट शौर्य इज ऑन द Position. Sorry. 7th पोजीशन। हाँ, शौर्य इज ऑन द 7th पोजीशन इन द टेबल। Now let me write down, instead of Shaurya, let me write down Aisha. What do we get as the answer now? 6. 6, because Aisha stands on the 6th position. Now let me write down Niti. What do I get as the position now? 1. 1. She is on the first position. Okay. Now let me write the another match. ये मैच आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं, हमें मैच, हमें ढूंढना है मार्क्स जो है, ये वाले मार्क्स, ये इस पूरे रेंज में कौन से कॉलम में है, ये इस पूरे रेंज में कौन से कॉलम्स में है। तो मैंने मैच लगाया, J5 करा, ये मार्क्स ढूंढना है, इस पूरे रेंज में ढूंढना है, और एग्जैक्ट मैच करना है। क्या आंसर आया है, क्या आंसर आया, 3. 3. what answer I've got, 3. Now let me introduce two more columns, three more columns, four more columns. Now what answer are we getting now, what answer are we getting now, 7. 7. Why? Because this is column number 7. It can be subject 1, subject 2, subject 3, subject 4, और टोटल मार्क्स, इसको टोटल कर देते हैं, टोटल मार्क्स। अब ये आ गया, क्योंकि यहाँ पे तो मार्क्स लिखा, यहाँ पे टोटल मार्क्स लिखा, इसको भी मैं टोटल मार्क्स कर रहा हूँ। तो अभी आपको समझ में आ गया है। एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज सी व्हेनेवर यू हैव टू अप्लाई VLOOKUP इन अ बिगर टेबल विच है सो मेनी कॉलम्स। मैं आपको एक डेटा दिखाता हूँ। देखिए, कभी भी एक्सेल पढ़ रहे हैं ना, इसको लिमिटेड सेंस में कभी मत पढ़ो, बिल्कुल कभी मत पढ़ो। हो सकता है ये सब एडवांस चीजें अभी आपके काम में नहीं आ रही हो, लेकिन कब काम में आ जाएगी आपको भी नहीं पता पड़ेगा। और जब काम में आएंगी तो फिर ऐसा ना हो कि आलोक सर की याद आए कि ये क्या पढ़ा दिया हमें, तो ये सब तो काम में आ ही नहीं रहा, जो आ रहा है वो पढ़ाया नहीं है, वो हमें आता नहीं है, हमने पढ़ा नहीं था। तो वो सब बाद में आप देखोगे, इससे अच्छा अभी देख लो आप, ठीक है। सो यू विल रिमेम्बर मी इन द गुड सेंस, नॉट इन द बैड सेंस। तो अभी मैं एक और स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अब आपको ये एक नई एक्सेल दिखाई दे रही है, कैन यू सी अ न्यू एक्सेल? Yes, sir. Yes, sir. Yes.
इट इज हैविंग आईपीएल मैचेस डेटा 2008 टू 2020। ये फाइल का नाम है, आईपीएल के मैचेस का डेटा है। आपको मैं दिखाता हूँ कितनी बड़ी फाइल है ये। और ये फाइल तो कुछ भी नहीं, अभी इसके बाद एक और फाइल दिखाऊंगा। यहाँ पे ये देखिए, ए कॉलम से लेके आई है। हाउ टू फाइंड आउट द कॉलम नंबर, व्हाट इज द कॉलम नंबर ऑफ क्यू? कैसे पता करते हैं, मैंने बताया था पहली क्लास में, बताइए क्या फॉर्मूला लगाएंगे श्रेष्ठा? सर 1 minute. आरुषि, नीति, Equals to column then bracket. क्यू कॉलम कौन सा कॉलम नंबर है वो पता करना है। वेरी गुड, ये होता है नोट्स बनाने का फायदा। फटाफट से पेपर घुमाया, देखा और आंसर कर दिया। कितने कॉलम है इस टेबल में? 17. इस डेटा कितने, ये डेटा कितने कॉलम का है? 17. 17 कॉलम का डेटा है, ठीक है। अब कंट्रोल और डाउन एरो दबाते हैं और रो पे आते हैं। कितनी रोज का डेटा है, बता सकता है कोई कितनी रोज का डेटा है? रो नंबर दिख रहा होगा आपको। 818. 18. 818 रोज का डेटा है और 17 कॉलम का डेटा है, 17 कॉलम का, ठीक है। और डेटा क्या है? ये मैच आईडी है, सिटी है, ये डेट है, प्लेयर ऑफ द मैच है, ये वेन्यू है, ये वेन्यू है, ये टीम 1, टीम 2, टीम 3, ठीक है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ मैन ऑफ द मैच कौन था, हु वाज द प्लेयर ऑफ द मैच, मुझे चाहिए ये नाम, प्लेयर ऑफ द मैच। और मुझे ये भी चाहिए कि विनर कौन था, हु वाज द विनर, विच टीम वॉन ऑन दैट पर्टिकुलर डेट, विनर। चलिए इस पे काम करते हैं, ठीक है। अब हम डेट कहाँ से लाएंगे? डेट को हम ड्रॉप डाउन बनाएंगे, तो यहाँ पे ऑल्ट ए वी बी, ये खुल गया है यहाँ पर। इसको कर देते हैं लिस्ट, और इधर जाते हैं वापस सोर्स में, क्लिक करते हैं, इधर मूव करते हैं और डेट सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से लेके पूरा 818 तक, ठीक है। और इसको ओके कर देते हैं। डेट आ गई मेरे पास, डेट आ गई सारी। Yes sir. अब कोई भी एक डेट सेलेक्ट करूंगा, उस डेट का मुझे प्लेयर ऑफ द मैच चाहिए और विनर चाहिए, ठीक है। प्लेयर ऑफ द मैच चाहिए और विनर चाहिए। अब मुझे लगाना है इंडेक्स मैच फंक्शन। अब बताओ, हेल्प मी, क्या करें? एरे क्या होगा बताइए, एरे। Date. सर टेबल पूरी। पूरी टेबल। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टेबल, लेकिन कुछ आ नहीं रहा टेबल से, क्यों? Because we have not पहले टेबल converted the बनानी data पड़ेगी। into table. ये कौन बोला पहले टेबल बनानी पड़ेगी? मैंने बोला कन्वर्ट करना पड़ेगा टेबल में। मैं कौन हूँ? नीति सॉरी। अच्छा बिकॉज आई डोंट सी हु इज टॉकिंग ना, तो मुझे पता नहीं पड़ता मैं कौन है। हाँ, आवाज से पहचान लेता हूँ मैं, ये नीति बोल रही है, लेकिन बाकी लोग नहीं पहचानते ना अभी नीति को। तो कंट्रोल ए करेंगे, यस यस। पहले टेबल बनाएंगे, पहले टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो शी इज राइट, इट इज नॉट अ टेबल। तो पहले आप डेटा सेलेक्ट कर लेंगे पूरा, और पूरा डेटा सेलेक्ट करने के बाद, अच्छा नीति टेबल कैसे बनाते हैं, शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल टी। कंट्रोल टी। वेरी गुड, कंट्रोल टी, एंटर। अब ये टेबल बन गई, ठीक है। इसका कलर ऑरेंज पसंद है, ऑरेंज कर देते हैं, जो आपको पसंद है वो कलर कर देते हैं, ठीक है। येलो कर देते हैं, ये टेबल बन गई। इसकी हेडिंग्स ब्लैक कलर से कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छा दिखने लगेगा। ये क्या हुआ, व्हाइट क्यों हो गया? अच्छा, ठीक है। तो नाउ दिस इज अ टेबल, दिस इज नाउ अ प्रॉपर टेबल। अभी ये इसने बोला था कि टेबल बना दो, बना दिए। अब आगे क्या करना है, इंडेक्स एरे, तो टेबल, पूरी टेबल सेलेक्ट कर ली या पर्टिकुलर कॉलम वगैरह, कोई टेबल कर लिया हमने सेलेक्ट, टेबल। कॉमा। हाँ, अब रो नंबर, रो नंबर ये एक सेकेंड। यू यू क्या दिख रहा है? यू रो नंबर, 4 हो जाएगा। U4। U4, U4। U4 जो आपने ऑलरेडी डेट वाला बना रखा है। हाँ ठीक है, U4 डाल दिया मैंने। जो जो डेट हमने सेलेक्ट करी है ड्रॉप डाउन में, वो रेफरेंस डाल दिया, ठीक है। कॉलम नंबर यस। क्या करें?
कॉलम नंबर पहले चेक करना पड़ेगा सर कि अपना वो विनर मतलब मुझे जो भी ये है चाहिए, प्लेयर ऑफ द मैच मैच। कौन से कॉलम में है, देखना पड़ेगा। हाँ, देखना पड़ेगा। हाँ देख के बताओ। कहाँ है मेरे पास। प्लेयर ऑफ द मैच डी डी, कॉलम डी। नंबर बताना है। अच्छा नंबर हो अरे गया नंबर ए तो बी बता सी दो, डी, कॉलम। फोर फोर फोर। सर ए स्टार्टिंग से एक बार के स्क्रॉल ए या बी तो सी मैं, डी इंग्लिश में मेरा लिख शीट दे। ओपन नहीं है एक्चुअली सर, मैं देखती हूँ एक सेकंड। हाँ हाँ, अच्छा कोई बात नहीं, ये देखिए ये रहा डेटा। ये कॉलम नंबर हम्म। पहला रहा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा है यस। प्लेयर ऑफ द मैच, हाँ ठीक है, तो फोर्थ फोर्थ हो कॉलम। जाएगा, कॉलम फोर डाल देंगे, कॉमा फोर। ठीक है, ये आपका काम आसान कर देता हूँ मैं। ठीक है, सबके कॉलम नंबर ऊपर आ रहे हैं अब। उंगली पे नहीं गिनना पड़ेगा कौन सा कॉलम। ठीक है, बट यहाँ तो एरर आ गया नीति। अच्छा मैच अ, फंक्शन यूज और करना जीरो है। भी तो। अच्छा बस तीन ही चीजें तो हैं, और कितना लिखेंगे? टेबल, एरे, रो नंबर और कॉलम नंबर। सर मैच फंक्शन यूज नहीं करेंगे क्या? हाँ वही तो है ना, मैच फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब आपको मैच फंक्शन क्यों यूज करना पड़ेगा? क्योंकि पहली बात तो आपने रो नंबर ये गलत दिया है, ये तो रेफरेंस है ना, ये तो हमारा लुकअप वैल्यू है। इससे तो ढूंढ रहे हैं ना हम, इससे तो ढूंढ रहे हैं। देखो अभी इधर वापस से पुरानी शीट पे जाते हैं हम, अपनी ओरिजिनल वाली शीट पे जिस पे हम कर रहे थे काम। ठीक है, यहाँ पर हमने इंडेक्स लगाया था, यहाँ हमने इंडेक्स लगा, यहाँ मैच लगा रखा है। इंडेक्स का लगाया था मैंने, यहाँ लगा देता हूँ, चलो इंडेक्स। एरे, एरे में से मान लो मैंने सपोज ये सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, कॉमा, रो नंबर। अब रो नंबर मुझे ये देखना है कि स्टूडेंट का नाम कौन से रो में है। तो मैं यहाँ पे एरे में रो नंबर में स्टूडेंट का नाम दे देता हूँ। तो ये नाम नहीं लेगा ना, या कोई डेट होगी तो डेट भी नहीं लेगा। तो वी कैन नॉट गिव दिस एज इट इज। ठीक है, तो रेफरेंस में ये नहीं दे सकते, यहाँ पे मुझे लगाना पड़ेगा मैच। ठीक है, यहाँ मैं समझा रहा हूँ, वहां आप लोग मुझे समझाएंगे। मैच लगाया, मैच में वापस आप ये लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, लुकअप एरे में ये सेलेक्ट करेंगे सेम, और यहाँ पे कर देंगे 0। अब हमारा इंडेक्स में से एरे हो गया, रो नंबर हो गया, कॉलम नंबर ऑब्वियसली 1 ही है। तो मैं लिखूं या नहीं लिखूं चलेगा, लिख देते हैं 1 और क्लोज कर देते हैं। अब आ गया नीति। ठीक है, तो इसने क्या करा, इसने मुझे यही नाम यहाँ पे रिपीट कर दिया क्योंकि इसमें यही था। ठीक है, वही सेम चीज उसने मुझे यहाँ पे दे दी है। इंडेक्स में वैल्यू निकाल के लाता है, ये नंबर नहीं देता है। इंडेक्स हमेशा क्या निकाल के लाता है? वैल्यू। मैच जो है वो पोजीशन बताता है। ठीक है, अगर मान लो मैं यहाँ पे मैच लगा दूं इंडेक्स से पहले, ठीक है, लुकअप वैल्यू यही आ गई, कॉमा, लुकअप एरे भी यही हो गया। तो अब देखो इसने 1 दे दिया मुझे, है ना, 1 दे दिया। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, आयशा लिख देता हूँ। 6 दे दिया। समझ में आ रहा है क्या किया हमने? नीति, यस सर। आर यू गेटिंग व्हाट आई हैव डन? यस यस। नाउ लेट मी राइट मयूर। मयूर, हम स्टूडेंट का नाम लिख रहे हैं, ये स्टूडेंट का नाम इस लिस्ट में है। इस लिस्ट में से मुझे चाहिए कौन सी पोजीशन पे ये नाम है, तो वो पोजीशन मुझे लाके दे रहे हैं। अब इसमें कितने फॉर्मूले लग गए हैं आप लोग सोच भी नहीं सकते। इंडेक्स लगा था पहले, फिर उसके अंदर मैच लगा था, फिर मैच लगा था एक और हमने इंडेक्स एक और मैच बाहर भी लगा दिए। अब इधर देखते हैं यहाँ कैसे करना है। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सो टेबल 1 हमने सेलेक्ट कर ली, हम्म। टेबल 1 पूरी सेलेक्ट कर ली है, एंटायर टेबल यू सेलेक्टेड, राइट? नाउ इन दिस टेबल this particular column has date। ठीक है, this particular column has date, corresponding to this date I want the player of the match। इस दिन पे कौन था player of the match वो मुझे चाहिए।
तो पहले तो मुझे देखना पड़ेगा कि डेट कौन से रो में फॉल करेगी। ये वाली डेट कोई भी डेट हो सकती है, कि कौन से रो में फॉल करेगी वो पता करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंडेक्स में टेबल आपने दे दिया। अब टेबल में भी इनफैक्ट आपको डेट वाला कॉलम स्पेसिफाई कर देना चाहिए। तो जितना स्पेसिफिक होंगे उतना सही आंसर आएगा। अब इसमें से रो नंबर ढूंढना पड़ेगा। आई डोंट नो कि वेयर दिस रो नंबर इज, व्हाट दिस रो नंबर इज। सो आप क्या करेंगे, लुकअप वैल्यू करेंगे, कॉमा, लुकअप एरे उसी टेबल की डेट वाले कॉलम में ढूंढना ही है, तो टेबल 1 और वापस से डेट दे देते हैं, कॉमा 0, एग्जैक्ट मैच है इसमें। तो ये हमने इंडेक्स के अंदर लगाया मैच, कि भैया रो नंबर हमें पता नहीं है, आप पता करके बताइए। ठीक है। और अगर पता चल कर दिए तो फिर कॉलम नंबर उस रो में जाइएगा जिसमें डेट है, और उसके पास वाले कॉलम से वैल्यू उठा के ले आइए। कौन से वाले कॉलम से, पास वाले कॉलम से। पास वाला कॉलम का नंबर क्या है, 4, क्योंकि मुझे पता है कि वैल्यू प्लेयर ऑफ द मैच जो है फोर्थ कॉलम में है। अब मैं इसको एंटर करता हूँ। एरर आ गया, एक मिनट देखते हैं क्या एरर आ रहा है। टेबल 1 में डेट करा हमने, डेट के बाद मैच करा, ये पोर्ट कर तो दिया। U4 फ्रीज होगा क्या? हाँ, उसको नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, कर ओके। देते हैं वैसे। उससे एरर नहीं आ रहा। देख रहा हूँ एक बार। टेबल में वापस हमने डेट करा लुकअप एरे में, और यहाँ पे मैच टाइप 0 कर दिया, और यहाँ पे कॉलम नंबर 4 कर दिया। ठीक है, रेफरेंस एरर है ये, एक मिनट। सर इंस्टेड ऑफ यूजिंग कॉलम कॉलम नंबर 4 हम लोग वापस से मैच का यूज करके प्लेयर ऑफ द मैच मेंशन कर सकते हैं क्या? हाँ, वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। फॉर द मैच ऐसे लिखा हुआ है, ये भी वो प्लेयर कॉलम है ये, इससे नहीं हुआ, इसको भी ठीक कर सकते हैं। रेफरेंस हमने दिया नहीं था ना, रेफरेंस यूज करेंगे। तो वो मैं कहते हैं मैच लुकअप वैल्यू विल बी V3। V3 की हेडिंग सेलेक्ट करनी, तो टेबल सेलेक्ट कर लो, टेबल 1, सॉरी टेबल 1 थी ना, टेबल 1, और हेडर लिख दो यहाँ पर, हेडर्स, HEA, हेडर्स, सारे हेडर्स सेलेक्ट हो जाएंगे। ये लुकअप वैल्यू होगी, लुकअप एरे हो गया, एग्जैक्ट मैच 0 कर दे और क्लोज कर दे ब्रैकेट। क्या हो गया इसको अब, मैच टाइप 0 ही तो है, रेफरेंस एरर आ रहा है, एक मिनट। टेबल का नाम टेबल 1 ही है ना, कई बार ये भी इशू हो जाता है। टेबल 1 है, डेट डेट कॉलम। इंडेक्स टेबल में डेट कॉलम हमने सिलेक्ट करा, फिर हमने लगाया मैच। मैच में हमने लिखा U4 को चेक करो डेट वाले कॉलम में। ठीक है, रो, ये रो हो गया, ठीक है, गॉट इट। तो समझ में आ गया मुझे, तो समझ में आ गया कि क्या प्रॉब्लम है। अब मैं समझ में आ गया कि क्या, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। अब समझ क्या है, मैं ये लुकअप वैल्यू है, कॉमा, लुकअप एरे, एरे विल बी व्हाट, का डेट कॉलम, और मैच टाइप 0 कर दिया। यहाँ क्या आया, 15 आया, ठीक है, 15, यहाँ पे 15 आ गया, मतलब 15 वाली रो में ये डेट है, 15 वाली प्लेयर्स के लिए हम इसको तोड़ तोड़ के चेक कर रहे हैं कि कहाँ दिक्कत आ सकती है।
ठीक है, और यहाँ पे करते हैं टेबल 1, और यहाँ पे हम प्लेयर ऑफ द मैच, ये हेडर्स सेलेक्ट कर लेते हैं, सारे हेडर्स में चेक करना, कॉमा मैच टाइप। यहाँ दिक्कत आ रही है, प्लेयर ऑफ द मैच में टेबल हेडर्स के अंदर मैच टाइप, प्लेयर ऑफ द मैच। ओ आप लोगों ने भी बताया नहीं, यहाँ तो प्लेयर ऑफ मैच ही लिखा था ना, दा कहा था, समझे? Yes. डिड यू गेट इट? यस। So now still we are not getting the answer. We are not getting the answer now. अब तो हमने ठीक कर डेट में कर डेट, और मैच में हम कर दिया हेडर्स V3 V3। ठीक है, V3 में लिखा हुआ है प्लेयर ऑफ द मैच। सही बात है, और इसको भी रेफरेंस एक मिनट, ये मैच, ये भी मैच इज इक्वल टू इंडेक्स एरे में ले लेते हैं टेबल 1, पूरी टेबल ले लेते हैं। रो नंबर के लिए हम ये फॉर्मूला कॉपी करेंगे यहाँ पे, कॉमा ये वाला फॉर्मूला कॉपी करना है, तो ये कॉमा ये कॉलम के लिए फॉर्मूला। हियर वी गॉट द आंसर। MS धोनी साहब आ गए हैं। चेक कर लेते हैं, भैया धोनी है, ठीक है, द आंसर इज धोनी। आपको समझ में आया है कैसे हुआ? और अब मुझे विनर भी निकालना है, अगर आपको आ गया तो आप विनर आप मुझे निकाल के देंगे, चलो।